দৈনন্দিন জীবনের এক রুটিন থেকে একটু নিজেকে সময় দেওয়া সবারই উচিত। আর তাই আমরাও বেরিয়ে পড়লাম পুজোর সময় দিল্লি, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে। অজানাকে জানার আর অচেনাকে চেনার ইচ্ছা মানুষের চিরকালের। তাই সময় পেলেই একটুখানি ঘুরে আসুন। বিশ্বাস করুন, এর থেকে বড় ওষুধ আমাদের হিউম্যান বডির জন্য আর কিচ্ছু। সো 28শে সেপ্টেম্বর 2025 শিয়ালদা থেকে আমরা আজমির এক্সপ্রেসে রওনা দিলাম আগ্রা ফোর্টের উদ্দেশ্যে। আমি আমার জার্নির প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। এখানে আনন্দ, দুর্ভোগ সব কিছু শেয়ার করব এবং দ্য WB96 রাইডারের প্রত্যেকটি দর্শকের কাছে আমার এই আবেদন থাকবে, আপনারা আমাকে সেই সমান ভালোবাসা দেবেন। তার থেকে একটু বেশি দিলেও কোনো ক্ষতি নেই। ফার্স্ট অফ অল আমাদের টিকিটটা কনফার্ম হয়নি, ওটা নিয়ে একটা বড় ঝামেলা হয়েছিল। বাট টিটিকে বলে এবং ওখানের আমাদের কোচের সবার হেল্পে আমরা খুব ভালোভাবে পৌঁছে গেছি, সবাই আনন্দ করে করে। আমার ভাগ্নিও একটা সঙ্গী পেয়ে গেছিলো খেলার জন্য। তো জার্নিটা একটু কষ্টদায়ক হলেও বেশ মজারই ছিল, এক অনন্য অভিজ্ঞতা। আর 4.5 ঘন্টা বাকি, তারপরে নামবো আমরা আগ্রা ফোর্ট। আগ্রা ফোর্টে আমরা নামলাম এখন যাচ্ছি অটো ধরবো, তারপর হোটেল। প্রচুর হনুমান আছে এখানে, তারপর এখন হনুমানের হাত থেকে জিনিসপত্র বাঁচাচ্ছে। ট্রেনটা 10-11 মিনিট মতো লেট করেছিল। অনেক ঘোরার পর চাচা আমাদের একটা হোটেল দিল। এই হচ্ছে হোটেল, হোটেলটা হচ্ছে হোটেল সানি রেসিডেন্সি। তো কালকে চাচার সাথেই ঘুরে বেড়াবো, আজকের মতো এখানে স্টপ করছি। চাচার সাথে একটু কথাবার্তা বলে নিই, আজকের মতো টাটা। আমরা ঘর নিয়ে নিয়েছি, এসি ঘর, 2 বেডরুম আছে। হ্যাঁ, মোটামুটি ঠিকঠাক, একদম কোনো রকম পরিষ্কার আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আর এখন খাবার অর্ডারের পালা চলছে, মেনু কার্ড দেখে কী অর্ডার করা হয় দেখা যাক। এসি আছে বাট গিজার নেই। আমি নাম্বারটা দিয়ে দেবো হোটেলে, যারা চাইবে আসতে পারো বেডিং ফেডিং দেখে। এখন খাবার টাবার দেখা যাক। কালকে আমরা বেরোচ্ছি সকালবেলা 8টা, তখন বেরিয়ে আমরা আগে আগ্রাটা দেখি, তারপর যদি সময় থাকে অন্যদিকে যাওয়া যাবে। হ্যাঁ চলো, আজকের মতো গুড নাইট, গুড মর্নিং। আমরা এখন রেডি হয়ে গেছি, এখন অটোর দরদাম চলছে, পুরো ঘোরাবে সাইট সিনগুলো। ফতেপুরটা যাই না, যাওয়া হবে কি হবে না, কারণ আর টাইমে হবে না। আমরা এখানে একদিন থাকবো, তারপর বেরিয়ে যাবো মথুরা, বৃন্দাবন, অ্যান্ড দেন আবার দিল্লি ব্যাক করব, তারপরে বাড়ি। দেখা যাক ফতেপুরটা হয় কি হয় না, বাকি সাইট সিনগুলো দেখি, আগ্রা ফোর্ট, তাজমহল, আরও কী কী আছে। এখন সকাল 8টা 45, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বেরোচ্ছি। এখন ভাগ্নি চান করছে, আর আধ ঘন্টা মতো হয়তো লাগবে, তারপরে বেরোচ্ছি। আমরা অনেক আগে রেডি হয়ে গেছিলাম, এরা রেড করছে এখনো অবধি। চলো দেখা হচ্ছে আগ্রা ফোর্ট ফার্স্টে, বাই। খেয়েটা নিই, পেছনে রেস্টুরেন্টে চাচা নিয়ে এলো, খাওয়া যাক এখানে।
সকালের প্রাতরাশ করে আমরা এখন যাচ্ছি সিকান্দারের ওখানে। তো যেখানে সিকান্দার লোদির পুরো হিস্ট্রি আছে, যা আমরা ছোটোবেলায় পড়েছি, সিকান্দার লোদি, ইব্রাহিম লোদি, সেটা ওখানে গিয়ে আমরা দেখছি। এখন পেট্রোল পাম্পে আছি, গ্যাস ভরাবে, তারপর আমরা যাচ্ছি। সুন্দর একটা শহর, দারুণ লাগছে। রাজধানীতে যাব লাস্ট দিনে। এখানে টিকিট হচ্ছে টোটাল এক একজনের 30 টাকা ইন্ডিয়ানদের জন্য, আর যদি অনলাইনে কাটা হয় তাহলে 25 টাকা। আমরা 30 টাকা দিয়েই কাটলাম। অনেক টুরিস্ট আছে, বাট মোটামুটি ফাঁকাই। সুন্দর জায়গা, ছাওয়া ছাওয়া আছে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এখন 10:34, 10:30 বাজে, তাও কোনোরকম কোনো অসুবিধা নেই। সামনে চেকিংও হচ্ছে। আজকে আমরা ট্রাইপডটা আমার নিয়ে নিল, ট্রাইপড নিয়ে ঢোকা যাবে না এখানে, আগে থেকে তোমাদের বলে রাখছি। ক্যামেরাও ডাউন করতে বললো, জানি না কেন। খুব সুন্দর। দিল্লির সুলতান সিকান্দার লোদি 1504 খ্রিস্টাব্দে আগ্রাতে এই স্থাপত্যটা গড়ে তুলেছিল। পরে যেটা মোগল আমলে একটা স্বর্ণময় একটা অধ্যায় হয়ে আছে। তিনি দিল্লি থেকে নিজের সাম্রাজ্য তুলে এনে এই আগ্রাতে স্থাপত্য করেছিলেন। আর ঠিক 13 বছর তিনি রাজত্ব করেন। তারপর তার যখন মৃত্যু হয়, তখন তার পুত্র ইব্রাহিম লোদি এটা ততদিন অবধি রক্ষা করতে পেরেছিল যতদিন না সম্রাট বাবর পানিপথের যুদ্ধে তাকে হারিয়ে এই স্থাপত্যটা নিজের দখল করেছিল। অপরূপ সুন্দর, এত সুন্দর কারুকার্য, অসম্ভব। আমরা ভেতরে ঢুকলাম, আর
আমাকে এরকম একটা পরিয়ে দিয়েছে আঙ্কেল, বললো জুতো খুলতে হবে না, সমস্যা হবে। তো ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই, আমি দেখে আসি কে আছে বলছি। ভেতরে সমাধি আছে আকবরের, জানা ছিল না, জানলাম আকবরের সমাধি আছে। তো ভেতরটা পুরো শুনশান, মানে আওয়াজ করলে ইকো হবে এমন, পুরো শুনশান। আর আমরা কেউ ছিলাম না, তো এটা মা বলছে গায়ে কাটা দিচ্ছে। হ্যালো, সবাই এখন হ্যালো হ্যালো করতে ব্যস্ত, পিলার ধরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। সৌরভ ওটা করো, হাততালিটা, সৌরভ হাততালিটা করো, ওখানে আগে করো। হ্যাঁ ওই জায়গাটা গিয়ে করো, নাহলে বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ সেটাই বলছি, জায়গাটা মার্কও করা আছে। হ্যাঁ এবার তুমি ওই ওই পাশে গিয়ে করো, দেখো ওটা পাবে না। দাঁড়াও, তুমি করো। আমরা এখন এই গুরুদ্বারে আছি। এই গুরুদ্বারটা 17 দশকে বানানো। এটা নবম গুরু তেগ বাহাদুর, গুরু তেগ বাহাদুরের আমল ওনাকে উৎসর্গ করা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে নবম গুরু তেগ বাহাদুর ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য জাহাঙ্গীরের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তাই এটা একটা ধর্মীয় স্থান হিসেবে মানা হয়, তাকে উৎসর্গ করে বানানো। আমরা ভেতরে যাচ্ছি, এখানে ক্যামেরা অবভিয়াসলি অ্যালাউ নেই মনে হয়, যাই দেখে আসি ভেতরটা। এখন আমরা যাচ্ছি রাধাস্বামী মন্দিরে, এটা দয়ালবাগ মন্দির নামে পরিচিত। এটা প্রথম সন্তগুরু স্বামীজি কর্তৃক এটাকে বানানো হয়েছিল 1861-তে। তো 1908 থেকে এর কাজ এখনও চলছে, যেটা এখনও কাজ শেষ হয়নি। পুরো শ্বেত মার্বেল দিয়ে বানানো, আর এটা শেষ হবে কিছুদিনের মধ্যেই বলা হচ্ছে। এটা হচ্ছে রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের প্রধান সদর দপ্তর, যার কাজ এখনো তৈরি হচ্ছে, ঢুকে দেখা যাক। অসাধারণ একটা স্থাপত্য সৃষ্টি হচ্ছে। ভাবা যায় 117 বছর ধরে এটা এখনো তৈরি হচ্ছে।
ইংরেজদের সময়ের ব্রিজ, আর এটা হচ্ছে যমুনা নদী। দূরে দেখা যাচ্ছে ওই যে, আমরা এখন যাচ্ছি। এখন আমরা আছি ইতিমাদ উদ্দৌলাতে, যেখানে হচ্ছে মির্জা গিয়াস বেগ আর আজমাত বেগম, এই দুজনের সমাধি আছে। এই দুজন হচ্ছে জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহার, ওনার মাতা এবং পিতা। তো তার সমাধি এখানে আছে, এটা দেখে নিই। 1622 সালে এটা শুরু হয়েছিল আর 1628 শেষ হয়ে গেছিল, মাত্র 6 বছরে। আর এটা তাজমহল বানানোর 4 বছর আগে এটা কমপ্লিট হয়ে গেছিল পুরো কাজটা। এটা দেখতে অনেকটা যেহেতু তাজমহলের মতো, একে বলা হয় বেবি তাজ। দুপুরে লাঞ্চ করার পর এখন আমরা ফোর্টে ঢুকছি, আর পেছনে হচ্ছে ফোর্ট। এরপরে আমরা তাজমহল দেখে আজকের জার্নি শেষ করব। ফোর্টে ঢোকা যাক। जिसे पूर्व मुगल जनरल द्वारा बिल्ड किया गया, पहले अकबर ने बनाना स्टार्ट किया 1565 में। अकबर के बाद में जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो पूर्व मुगल जनरल द्वारा बिल्ड किया 1660 में कंप्लीट हुआ। ओके, तो अभी के टाइम पे हम लोग इसका 25% एरिया विजिट करते हैं, 75% एरिया आर्मी के अंडर में आता है। मुगल टाइम मुगल आर्मी ब्रिटिश टाइम शाहजहां के उस टाइम उनके चीफ कमांडर थे। बट मुगल टाइम पे दरवाजों पर अभी विंडोज बने, राजा की 85 फीट की हाइट है इसकी, फर्स्ट डोर से लेके ऊपर तक। तो जब उस टाइम पे घोड़े ऊपर चढ़ेंगे पिसलेंगे नहीं, क्योंकि पहले नार होता था आर्मी का गिरने के लिए। গাইড পেয়ে গেছি, গাইডের সাথে সাথে যাচ্ছি এখন। गर्म पानी आएगा तो उसमें क्या करेंगे, बचने के लिए बीच में आ जाएंगे। जैसे बीच में आते हैं ना, सेम टाइम पे ऊपर से लगभग 100 kg के राउंड इसको डाउन कर दिया जाता है। डिफेंस के लिए बनाया गया, या तो स्कूल के नीचे पत्थर के नीचे सब्जी खत्म हो जाएंगे, या दोनों साइड में गर्म पानी से जल दिया। তো বেসিক্যালি এখান থেকে পাথরের টুকরো ছেড়ে দিত, আর শত্রুপক্ষ যখন বাঁচার জন্য এই দেয়ালে আসতো, তখন ওইগুলো থেকে গরম তেল আর জল ছাড়া হতো, যাতে এখানে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। আর এখানে দাঁড়াতে না পেরে যখন মাঝখানে আসবে, তখন ওই পাথরের টুকরোর আঘাতে মৃত্যু হবে। আর পেছনে যে দরজাটা আছে, ওটা অনেক আগে বন্ধ হয়ে যেত এই পাথরের টুকরোর জন্য। मोबाइल लोग जो पैलेस देखे उसके बगल में दीवार देख रहे हैं, टूटा हुआ ऐसा तो पेड़ नजर आ रहा है, उसे बोलते हैं अकबरी पैलेस, मीन्स अकबर का पैलेस। बट अभी के टाइम पे नहीं है। रीजन है भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट, उन्होंने 1761 में अटैक किया, पूरा अकबरी पैलेस डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी टाइम का अकबरी पैलेस टूटा हुआ है। ओके, उनकी लड़के जहांगीर भी सलीम का पैलेस अभी ओपन है, हम लोग इधर से एंटर करेंगे, पूरा अंदर से घूम के आएंगे, तो ये एग्जिट होगा बाहर आने के लिए। स्टूल देख पा रहे हैं, सेंटर में स्टूल रखा है। ये जहांगीर के नाने का पार्ट का, सलीम के नाने का पार्ट का, उससे भर के पूरा गिफ्ट किया। अब इसकी जो हाइट देख रहे हैं 5 फीट का, लगभग आपका 5 फीट का हाइट है। इसका जो वेट है 3000 किलो, लगभग 3 टन के करीब। बल्कि स्टोन बनाए, कोई भी जॉइंट नहीं है, विदाउट जॉइंट सिंगल स्टोन बनाया गया है। 3 स्टेप इनसाइड बनाया है, 3 स्टेप आउटसाइड, 3 सीढ़ी अंदर और 3 सीढ़ी बाहर बनाया, अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए। इसके तभी अकबरी महल में था, अकबरी महल को डिस्टर्ब हो गया तो निकाल के बाहर रख दिया गया। अरे प्रचुर बाकी আছে।
जगह पे खड़े से कोई नॉर्मल खाना मुगल टाइम में जब भी पूरा अंदर एंटर करेगा दोनों साइड में 9 ड्रम्स हो जाएगा। इधर कॉर्नर में दरबारी के होगा अनाउंसमेंट करने के लिए, जैसे अंदर एंटर करेंगे इधर सेंटर में आके रास्ता खड़े हो जाएंगे। हम ये एरिया पूरा देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं रनमैन मीन्स डांस पैलेस। मुगल टाइम पे इस एरिया में डांस हुआ करता था, डांस को देखने के लिए ऊपर हम लोग छतरी देख रहे हैं, ओके छतरी के नीचे इसमें जो विंडो है रानी के बैठने के लिए, विंडो के दोनों साइड में इसके अंदर हम ओपन देख रहे हैं, ये हरम की रानियों के लिए। हरम की रानी को ये बीच पे लाया था, ओके बैठ के डांस देख सकते हैं, ऊपर से पर्दे लगा दें इसमें भी देख रहा है। वो छतरी में चारों साइड में बना हुआ है, जिनके अदर कंट्री के अदर स्टेट से राजा आएंगे उनके बैठने के लिए। साइड में हम लोग जितना भी स्पेस देख रहे हैं उस टाइम पे डाइनिंग हॉल पे हम लोग खाना पीना खाया करते थे। इस साइड से एक दरवाजा है, एक दरवाजा सेंटर में देख पा रहे हैं, थोड़ा सा अगर आपको नजर आ रहा है तो पिलर की वजह से होता है। और विंटर पैलेस हुआ करते हैं, तो सामने जो जगह हम लोग देख रहे हैं ना उस टाइम का विंटर पैलेस है। जैसे आज के टाइम पे हम लोग अपने बिल्कुल हीटर से गर्म करते हैं, उस टाइम पे कोयले का यूज़ करते हैं, लकड़ी को जला के जो उसका कोयला बनता है, क्योंकि सैंड होना तो हीटर से जल्दी गर्म होने लगता है। तो साइड में छोटा वाला दरवाजा बना है, इस दरवाजे पर अंदर जाते आप रूम में देखिए छोटा सा जाली बना हुआ है ग्राउंड से, गैलरी उसमें कोयला रखेगा, उसकी वजह से हीट आएगा, उससे अपने रूम के टेम्परेचर हीट होने लगेगा, तो गर्म बंद कर देंगे, काफ़ी मोटे कार्पेट होते हैं, इससे क्या है कि टेम्परेचर आपका बना रहेगा गर्म, ओके। और मॉर्निंग में राजा को उठाने के लिए भी एकदम ना अलार्म नहीं करो, तो रास्ते में से पायल करेंगे, उसी डोर से एंटर करेंगे, पीछे घूमते हुए दूसरी साइड से एग्जिट करेंगे, अच्छा सा गाना गाते हुए या उस टाइम पे पायल होगी चमचम होगी इसकी आवाज़। और देखो अब स्कूल में अंदर जा रहे हैं ना, ये उस टाइम का हिंदू टेम्पल था। आगे जगह देख रहे हैं ना, अभी के टाइम में आपको पूरी ग्राउंड दिख रहा है, थोड़ा दूर जगह भी इसको जितने भी डिजाइन है ये बड़ा आपको टाइम है हमारा 68 से है, और ये जो देख रहे हैं तो ऊपर से बना हुआ है आगे का एक मतलब भगवान की डिफरेंट उसका यहाँ पे भी है, देखो सीढ़ी आपने देखो सीढ़ी देखा तो सीढ़ी में सीढ़ी करके बना हुआ है। যাই হোক ওয়েদারটা খুব ভালো পেয়েছি আমরা, গাইডটাও ভালো পেয়েছি, সুন্দরভাবে বোঝাচ্ছে সেটা। लाइब्रेरी है, इस अकबर के टाइम में बनाया गया है, जहाँ पे लाइब्रेरी बोलते हैं, ओरिजिनल कलर बता देते हैं, मतलब देखो गोल्डन कलर की लाइन है, और लाइब्रेरी ये गोल्डन कलर की लाइन है, जो कि कोई कलर नहीं है, गोल्ड का ओरिजिनल। मैं आपको यहाँ पे लाइट करते हैं, उसका सामने ऐसा ही गोल्ड ही ऊपर लगा हुआ है, हाँ उस टाइम में ना पूरा लिक्विड फॉर्म में नहीं पूरा कलर करते हैं। तो देखिए नाली हम लोग देख रहे हैं, इसको लास्ट में हॉल बना हुआ है, दीवार का जितना अच्छा पानी वहाँ से निकल के आएगा, यहाँ पे स्कूल हो जाएगा, आगे वाले हॉल से पूरा पानी अंदर होगा, तो दीवार आपका ठंडा रहेगा, अंदर से भी रहेगा, पानी भरा रहेगा, दीवार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यमुना में देखिए, यहाँ पे यमुना और तालगढ़ दोनों दिखते हैं, हाँ আর সামনে যাবে না, ওটা বিরাট বড় যমুনা নদী। চলো একটু সামনে কি দেখবো, এখান থেকে বেশি দেরি লাভ নেই, একটু সামনে গিয়ে দেখবো ওই দিক ওই দিক। तो अभी हम पैलेस के अंदर मुगल टाइम में रानी या राजा रूम के अंदर जाएंगे तो रूम के दरवाजों को बंद कर देंगे, तो रूम के दरवाजे बंद हो जाएंगे, अंदर हवा नहीं जाएगी, रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगे होते, तो विंडो हम लोग देखते हैं, आपको गर्म दिख रही है, इसी विंडो के समय टूटी अपनी हवा अंदर लाइट होता है
এটাই হচ্ছে এই জানলার বিশেষত্ব, বাইরে দিয়ে বন্ধ লাগলো, ভেতর দিয়ে এটা খোলা থাকে। लाल बलुआ पत्ते का बना हुआ है, वो जागीर का पैलेस है। जो व्हाइट वाला पैलेस हमने जितना भी देखा सांझा का पैलेस बना हुआ है, ये पहले रेड स्टोन का उन्होंने इस पैलेस को तोड़ के पूरा व्हाइट स्टोन में बनाया था। यानी सांझा और मुमताज के 14 बच्चे तो उनमें से 8 नेचुरल डेथ हो गए, बच्चे 6 औरंगजेब, दारासुको, सासूजा, मुराद, रोशनारा, झाना। 2 लड़कियाँ 4 लड़के, इन 3 को औरंगजेब ने मार दिया, अपने बड़े भाई दारासुको, सासूजा और मुराद। यानी अपने फादर सांझन को आगे बना हुआ है, उनकी 2 चल के जाना पड़ेगा, चल के पिक्चर क्रोकोडाइल मगरमच्छ छोड़ गया था। बाउंड्री पे सोल्जर, अंदर वाले साइड में टाइगर। ये 3 लेयर सिक्योरिटी बनाएंगे तो उसके अंदर एंट्री ना कर पाए, क्योंकि देखिए डे में तो हम लोग देख पाएंगे, रोशनी रहता है, नाइट में नहीं रहता था उसे। तो नाइट में क्या कोई अंदर आने की कोशिश करता है, पानी से आएगा मगरमच्छ करने के लिए। खास महल। বেডরুমে এসব করছে। এইটুকু শোনা ব্রিটিশরা ছেড়ে দিয়ে গেছে এদের বেডরুমে। वाइन बनती थी, जागीर को वाइन पीने का काफ़ी शौक था, तो अंगूर की गला को उस टाइम पर राजा के लिए वाइन बनाई जाती थी। ये फाउंटेन अभी हम लोग देख रहे हैं ना, आज के टाइम पे क्या हम लोग ने मशीनों से चला सकते हैं, मुगल टाइम में कोई मशीन नहीं था उनको चलाने के लिए। ऊपर देखेंगे, देखिए सीढ़ी बना हुआ है, व्हाइट वाला जो टैंक हम लोग देख पा रहे हैं, स्टेप बना है ना, व्हाइट वाला पूरा टैंक बना है, इसे यमुना से पानी लाके भरा जाता है, पानी भरने के बाद में इसके अंदर गुलाब की पत्ती डालकर रहेगा मॉर्निंग के टाइम में। बड़े बड़े हॉल बने हैं, जिसमें ओपन करोगे तो हॉल से ओपन होगा, ऑटोमेटिकली पानी नीचे आएगा, पानी का प्रेशर से आएगा तो प्रेशर के लिए चालू हो जाएगा। ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने के उन्होंने क्या किया, नीचे से काफ़ी चौड़ा बना हुआ, ऊपर से पतला कर दे, तो ज़्यादा प्रेशर होगा, पानी से ऊपर चला जाएगा। बुद्धि थी लाने का तो उनकी मर्जी के बिना उन्हें लेकर आना है। तो ये उनका जेल बना हुआ है, इसे हरम जेल बोलते हैं। युद्ध में से रानी को जीत के लाते और राजा की बातें नहीं मानती ना, जेल में बंद कर दिया है इस टाइम पे जेल। अभी तो सर अभी हम लोग पैलेस के आगे खड़े हैं, इसे बोलते हैं शीश महल। ऐसा शीश महल दिल्ली और लाहौर में भी शाहजहां ने बनाया और पूरा स्पेशल है। इसके अंदर जितने भी शीशे देखो ना दीवार पे, दीवार पे शीशे लगे हुए हैं, तो अभी लाइट का लगा था। ओके, इस शीशे उस टाइम पे सीरिया से मंगाए गए थे, सीरिया पे का हलमनाक भी है, वहाँ से 7 डिफरेंट साउंड आते हैं, जैसे आप गाना गा सकते हो, सुन सकते हो। तो वो तो उस टाइम में मुमताज के नहाते टाइम में गाने बजाए जाते थे। बट आज के टाइम में हम लोग अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि लोगों ने ना शीशे निकालना स्टार्ट कर दिया है। दादा आज के टाइम में हम लोग अंदर नहीं जा सकते, लोगों ने शीशे निकालना स्टार्ट कर दिया। बट जब अंदर जाते थे ना, जैसे आप कैंडल जलाओगे इस तरीके का पूरा व्यू आता है ना। एक ये हो गया, एक फोटो में आपको दिखाऊंगा, तो ओनली फॉर 2 कैंडल जलाओगे ये पूरा लाइट करेगा इस तरीके से। और जैसे मैं आपको में हाउस अरेस्ट किया गया था 8 साल के लिए, 1658 से 1666। बालकनी से शाहजहां ताजमहल देखते हैं, सेंटर में शाहजहां का रूम बना है, इसी रूम में शाहजहां का डेथ हो गया 22 जनवरी 1666 में। ये फाउंटेन है ना, उनका वजू खाना है, यहाँ पर अपना वजू करके मीन अपने हाथ पर धोने के बाद में ऊपर मीना मस्जिद है, वहाँ जाकर 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं। बट आज के टाइम पर हम लोग इस रूम के अंदर नहीं आ सकते, रीज़न क्या है, इधर हम लोग देख पा रहे हैं स्टोर लगे हुए हैं, जैसे पन्ना लगा है, ये लोगों ने निकालना स्टार्ट कर दिया। तो लॉकडाउन के बाद में बैरिकेड लगा दिया, उससे पहले ये ओपन था, अंदर जाके देख सकते थे। अभी के टाइम में हम लोग अंदर नहीं जा सकते। फिर शाहजहां का जेल है, शाहजहां बंदी बना डेड बॉडी को ताजमहल तक लेके गए थे। ये टनल पर सीधा ताजमहल तक है, बट शाहजहां की डेड बॉडी को लेके गए यहाँ से यमुना रिवर, फिर नाव से ताजमहल तक। तो आराम से औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को अरेस्ट किया 8 साल के लिए 1658 से 1666 है।
1657 से 1676, तो 8 साल तक इसी रास्ते से ऊपर की सीढ़ियों से जाया था, तो उसके बाद अपने रूम में चले जाते। 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे। रात बंदी क्यों किया है, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, आने जाने का रास्ता एक ही होते, तो लोग हम जैसे 15-20 लोग ऊपर हो जाते हैं। अभी हम जिस जगह पे खड़े उसे बोलते हैं दीवाने कासिम पार्लियामेंट प्राइवेट मीटिंग हाउस। मुगल टाइम में प्राइवेट मीटिंग होता। ब्लैक वाले स्टोन में राजा बैठा करते, बीच उनके मंत्रियों को अपने सिंहासनों पे, और व्हाइट वाले स्टोन में उनके वजीर एडवाइजर अदर कंट्रीज के राजा के बैठने के लिए होते। और इस टाइम अगर बारिश होती है, धूप ज़्यादा रहेगी, वो लोग मीटिंग अंदर करेंगे, मौसम अच्छा रहती है, मीटिंग को बाहर करेंगे। तो ब्लैक वाले स्टोन हम लोग देख रहे हैं, इसी स्टेप जिनसे इलाहाबाद से आगरा। अभी के टाइम में ब्लैक स्टोन बीच में टूटा हुआ है, रीजन के हिट किया बाउंस होने के बाद में सुपर हॉल हो गया। उसी टाइम का टूटा है 1803 का। ओके, तो स्टोन मेन कलर था, आप ये डोम देख रहे हो ना, पीतल कलर में, ऐसे उस टाइम पे गोल्ड होता है, गोल्ड का डोम था उसके ऊपर, उसके गिरने की वजह से ये पूरा क्रैक हो गया। उसी टाइम का टूटा है। एंड यहाँ पर कसौटी स्टोन होता है, कसौटी स्टोन को अपने ज्वेलर के सामने दिखाओ, गोल्ड को चेक करनी है, तो वही स्टोन है, गोल्ड को चेक करनी है। कि आपने कहा बड़ा दिखेगा, यहाँ से हमने देखा छोटा दिख रहा है, वहाँ से देखिए, वहाँ से टाइम बड़ा दिखेगा। এখান থেকে তাজমহলটা এরকম দেখালো, বলছে ওই সাদা পিলারে যাব, ওখান থেকে তাজমহলটা আরও নাকি বড় দেখানো, মানে দূরে গেলে তো ছোট দেখানোর কথা, বাট ভালো গাইড পেয়েছি। मुझे पास से देख रहे थे तो हमें बड़ा दिख रहा था, सॉरी छोटा दिख रहा था, दूर से देख रहे तो बड़ा दिख रहा है। तो ऑप्टिकल इल्यूजन आंखों का धोखा, बस सामने में बड़ा दिख रहा है, ओनली ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, आंखों का धोखा होता है। आप अगर मोबाइल को नॉर्मल देख रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा छोटा दिख रहा होगा, और मोबाइल में अगर आप খুব সুন্দরভাবে ফোর্টটা ঘোরা হলো, আর যে গাইড ছিল খুব সুন্দরভাবে গাইড করেছে। কত কি নিয়েছে সেটা তোমরা দরদাম করে নেবে, বাট আমি ওর নাম আর নাম্বারটা নিচে দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ওর কাছ থেকে নিতে পারো, কেননা ও খুব সুন্দর গাইড করে। আমার তো দারুণ লেগেছে, আমাদের প্রত্যেকেই খুব ভালো লেগেছে। তো এরপরে তাজমহল দেখার পালা, তাজমহলে যাচ্ছি আমরা। অসংখ্য বাদরে ছড়াছড়ি, টিকিট অনলাইনে কাটা যাচ্ছে না। খুব কড়াভাবে চেক ইন হলো, ভাবলাম পাওয়ার ব্যাঙ্কটাও দেবে না, চাষবাস শেষ হয়ে গেছিলো। লাস্ট ভিজিট তাজমহলে যাচ্ছি, শাহজাহান মমতাজের জন্য বানিয়েছিলেন। 1632 থেকে 1653, 22 বছর লেগেছিল, 20,000 শ্রমিককে দিয়ে কাজ করিয়ে এই তাজমহল তৈরি হয়েছিল। তাজমহলের আশেপাশে আরও দুটো এরকম বানানো হয়েছে, যার একটা হচ্ছে গেস্ট হাউস আর একটা হচ্ছে মসজিদ। শুক্রবার করে তাই বন্ধ থাকে এখানে মসজিদটার জন্য। এটা হচ্ছে গেস্ট হাউস আর এটা হচ্ছে মসজিদ। আমাদের সবাইকে এরকম জুতো পরিয়ে দিয়েছে, জুতোর কভার। সন্টু তোমাকেও পরিয়ে দিয়েছে? বাও, ভেতরে ঢুকছি, প্রচণ্ড ওয়েদার খারাপ, সবাই ভিজে গেছি আমরা, ও মজা পেয়ে গেছে। হ্যাঁ
ও এখন মোমো খাওয়া হচ্ছে, মোমোর বায়না উঠেছে, মোমো খাওয়া হচ্ছে। আর এইভাবেই আমাদের আজকের আগ্রার ব্লগ শেষ হলো। এবার বাকি আছে মথুরা, বৃন্দাবন আর দিল্লি। আর মাঝখানে যদি ফতেপুর হয় তো সেইভাবেই কথা হয়েছে। তো হাই করছে। তো আবার কাল সকালে দেখা হচ্ছে। আর ভিডিওটা লেন্দি হলে একটু দেখো, আদারওয়াইজ পাটে আসছে। বেশি লেন্দি হয়ে গেলে পাটে করে দেবো, কারণ অনেকটা আজকে ঘোরা হয়েছে, অনেক কিছু ফুটেজ আছে, অনেক ভালোভাবে বিস্তারিতভাবে আছে। তো আজকের জন্য ভাই, আর নতুন ভিডিও এলে পার্ট 2 আবার দেখবে। আদারওয়াইজ যদি এটা কন্টিনিউ হয় তো কন্টিনিউ দেখবে। বাই।